Hello students, welcome to my channel Grip2 Science. Students, we have learned a lot about the topic cell. Cell is the fundamental unit of life. Today in this video we are going to learn some important terms and questions of this chapter. This video is very important from exam point of view, whether your school exam as well as your competitive exam. So let's start the video to learn something more. First of all, we will learn some important terms, or we can say that we will revise the chapter. Cell. Cell is derived from a Latin word cellula, which means a little room. Cell that is derived from cellula, जिसका meaning होता है a little room, एक छोटा कमरा. Cell is regarded as the structural and functional unit of living organism. The term cell was given by an English scientist, Robert Hooke, in 1665. So who discovered cell? Yeah, who give the name cell? Robert Hooke. Unicellular organism. These are the organisms wherein a single cell constitute the whole organism. Uni means one. So the organism which have one cell, they are unicellular organism. Multicellular organism. Multi means many. These organisms are formed of many number of cells. Anton von Leeuwenhoek designed improved microscope. So new microscope, improved microscope की discovery किसने की थी? Anton von Leeuwenhoek, and described for the first free living cells in 1674. Robert Brown, a Scotch botanist, in 1831 discovered nucleus in an orchid root cell. So nucleus की discovery किसने की थी? Robert Brown. Dujardin, a French zoologist, in 1835 discovered a semi-fluid material in certain protozoan and named it sarcode. Dujardin एक फ्रेंच जोलॉजिस्ट थे जिन्होंने कुछ प्रोटोजोन्स की सेल्स में क्या देखा? कुछ सेमी फ्लूइड मटेरियल देखा, एंड ही नेम्ड दैट सार्कोड. बट इन 1940 में जोन्स ई पुरकिंजे ने क्या किया था? वही सेम मटेरियल उन्होंने प्लांट सेल्स में देखा. ठीक है, और उन्होंने उस सेमी फ्लूइड मटेरियल को नेम दिया प्रोटोप्लाज्म. So this was how protoplasm was discovered. So protoplasm was discovered by Johns E. Purkinje. M.J. Sheldon, a German botanist, in 1838 announced that all the plants were composed of cells. M.J. Sheldon ने क्या डिस्कवर किया कि जितने भी प्लांट सेल्स हैं दे आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स, वो सेल्स के बने हुए. देन इन 1839 टी सचवान, वो क्या थे? एक जोलॉजिस्ट थे. उन्होंने क्या डिस्कवर किया कि जितने भी एनिमल्स हैं दे आर फॉर्म्ड ऑफ सेल्स, एंड बोथ दीज डिस्कवरीज इट लेड टू फॉर्म द सेल थ्योरी. सो वी कैन से दैट सेल थ्योरी की डिस्कवरी किसने की थी? हु प्रोपाउंडेड द सेल थ्योरी? शेल्डन एंड सचवान. Rudolf Virchow, a German biologist, in 1858 presented the idea omnicellula e cellulae, which means that all living cells arise from the pre-existing cells. जो रुडोल्फ विर्चो थे उन्होंने 1858 में एक न्यू बात कही, उन्होंने एक नया आइडिया दिया दैट ओमिनस सेलुला ई सेलुला मीन्स जितनी भी लिविंग सेल्स हैं वो पुरानी सेल्स से एग्जिस्ट होती हैं. पुरानी सेल्स खत्म होती हैं, न्यू सेल्स बनती हैं. ठीक है, तो it led to the modification of cell theory. Now what the question come? Who modified the cell theory? That is Rudolf Virchow. Who gave the cell theory? Sheldon and Sachwan. Who modified the cell theory? Rudolf Virchow. Electron microscope was discovered by Knoll and Ruska in 1940, which was used to describe the structure of cell. 1940 में किसकी डिस्कवरी हुई? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की. एंड हु डिस्कवर्ड? नॉल एंड रस्का. एंड विद द हेल्प ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप सेल की जो है डिटेल्ड स्ट्रक्चर को स्टडी किया गया. नेक्स्ट इज प्रोकैरियोटिक सेल. प्रो मीन्स बिफोर, और वी कैन से प्रो मीन्स primitive, purana.
Karyon means nucleus, means the cells of some most primitive organism like bacteria, blue-green algae. They lack the nuclear membrane around their genetic material, and these are called prokaryotic cells. तो प्रोकैरियोटिक सेल्स कौन सी हैं? मैक्सिमम जितने भी प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं. मीन्स डिफरेंस क्या होता है? जो न्यूक्लियर मटेरियल होता है उसके बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, और वी कैन से द न्यूक्लियस इज नॉट वेल डेवलप्ड. यूकैरियोटिक सेल, यू मीन्स ट्रू, karyon means nucleus. So the cells which have the true nucleus means the nuclear material bounded with nuclear membrane. वो cells जिनमें nuclear material nuclear membrane के साथ है, those are the eukaryotic cells. Selectively permeable membrane, which allows the penetration of solvent freely but selects the passage of specific solute particles. Selectively permeable कि कुछ selected molecules को ही move करने देता है from one side to another side. सभी solvent molecules तो move कर सकते हैं, but जो solute molecules हैं they are selected for the penetration. Diffusion, the process by which a substance uniformly spread into another substance by random movement of its particles from a high region of high concentration to a region of low concentration due to its kinetic energy is called diffusion. Diffusion क्या है? जहाँ पर molecules move कर रहे हैं, कहाँ से? From the region of high concentration to the region of low concentration. Osmosis, the diffusion of water or solvent molecules. Diffusion में क्या move कर रहे थे? Solute particles. In osmosis, solvent molecules are moving through a semi-permeable membrane. Main बात, एक semi-permeable membrane present है. From a region of lower concentration of solute. अगर solute की concentration कम होगी, it means solvent की ज़्यादा है, तभी तो move कर रहा है. Isotonic solution, solution in which concentration of water and solute is the same as in the cytoplasm of the cell. Iso means equal. अगर हम किसी सेल को एक ऐसे सॉल्यूशन में डिप करते हैं जिसके अंदर सॉल्यूट और सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन सेल के सॉल्यूट और सॉल्वेंट कंसंट्रेशन के इक्वल होती है, दैट सॉल्यूशन इज आइसोटोनिक. हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, solution in which concentration of solute is less and concentration of water is more as compared to inside the cell. हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कौन सा है? जिसके अंदर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कम है, वाटर की ज़्यादा है. किसके कंपैरिजन में? कंपैरिजन टू सेल. हाइपरटोनिक, जिसमें सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, वाटर की कंसंट्रेशन कम है एज कंपेयर टू दैट ऑफ सेल. देन एंडोसाइटोसिस. एंडो मीन्स इनसाइड, अंदर. द प्रोसेस बाय विच एनिमल्स engulf food and other substances from external medium by plasma membrane. Endocytosis, cyto means cell. तो वो प्रोसेस जिसके द्वारा एनिमल्स फूड को या किसी और सब्सटेंस को अपने अंदर लेते हैं, दैट इज एंडोसाइटोसिस. पिनोसाइटोसिस और सेल ड्रिंकिंग. पिनो स्टैंड्स फॉर लिक्विड, सो इनटेक ऑफ द लिक्विड फूड मीन्स पिनोसाइटोसिस. दिस इज ऑल्सो नोन एज सेल ड्रिंकिंग. Intake of tiny droplet of extracellular fluid by cell through cell membrane. Cell membrane के थ्रू जब cells extracellular कोई fluid लेते हैं, liquid material जब लेते हैं, that is pinocytosis. Phagocytosis और cell eating. Phago means solid. तो solid food का intake, that is phagocytosis. Exocytosis और cellular vomiting और ephagy. एक्सो मीन्स आउटसाइड, बाहर. सेलुलर वॉमिटिंग, वॉमिट बाहर निकलना. तो जब सेल में से कुछ मटेरियल बाहर निकाला जाता है, बाहर एक्सपेल आउट किया जाता है, द प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स द एक्सपेलिंग आउट द सेल कंटेंट टू द सराउंडिंग मीडियम. जब सेल कंटेंट बाहर फेंका जाता है, दैट इज एक्सोसाइटोसिस और सेलुलर वॉमिटिंग और ईफेजी. न्यूक्लियस, दैट इज द कंट्रोल हाउस ऑफ द सेल. Chromosomes, carrier of hereditary information of cell. Metacentric chromosome. Meta means center. The centromere is near the middle and the two arms are almost equal in length. वो क्रोमोसोम जिनमें सेंट्रोमियर सेंटर में प्रेजेंट होता है, मिडल में प्रेजेंट होता है,
और जो अपर और लोअर आर्म है दे आर इक्वल इन लेंथ, दैट इज द मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम जिसमें सेंटर से थोड़ा आगे पीछे होता है सेंट्रोमियर, दैट इज सब मेटासेंट्रिक। अब सेंटर से अगर थोड़ा आगे या पीछे होगा सेंट्रोमियर तो एक आर्म लॉन्ग होगी एक आर्म शॉर्ट होगी, दैट इज सब मेटासेंट्रिक। एक्रोसेंट्रिक, सेंट्रोमियर इज नियर द एंड के पास है, एंड पर नहीं है, एंड के पास है, जिसकी वजह से एक आर्म बहुत छोटी है एक आर्म बहुत लॉन्ग है। टीलोसेंट्रिक, सेंट्रोमियर इज एट द टिप, बिल्कुल टिप पर है। अब टिप पर होने से क्या होगा, सारी आर्म एक साइड आ जाएंगी। नेक्स्ट इज साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म इज द सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स ऑफ ए सेल बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो सेल होती है, सेल में सबसे बाहर की जो कवरिंग है, आउटर कवरिंग, दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेंटर में क्या है, न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में जितना भी सेमी फ्लूइड मटेरियल है दैट इज साइटोप्लाज्म। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। मेन फंक्शन क्या है, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। इट इज रफ because of presence of ribosomes. Smooth endoplasmic reticulum, it is responsible for synthesis of lipids. Ribosomes, these are known as protein factories of the cell. फैक्ट्री क्या होती है, जहाँ कोई चीज़ बनती है। प्रोटीन फैक्ट्री मीन्स वो जगह जहाँ पर प्रोटीन्स बन रही हैं हमारी बॉडी की। So ribosomes are the protein factories of the cell. It was first discovered by George Parrott in 1955. Lysosomes, these are the suicidal bags. They contain hydrolytic or digestive enzyme. Very important question. Lysosome contain the hydrolytic enzyme or digestive enzyme. It was discovered by C.D. Dewey in 1949. Golgi apparatus, it is the packaging unit of cell discovered by Camillo Golgi. Mitochondria, very important organ, it is the powerhouse of the cell or storage battery. Why it is the powerhouse of the cell? Because the process of respiration that occur in the mitochondria. जो respiration होता है वो mitochondria में होता है और respiration से हमें एनर्जी मिलती है। रेस्पिरेशन में क्या होता है, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, और जब ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होती है तो हमें एनर्जी मिलती है, ठीक है। सो माइटोकॉन्ड्रिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग द एनर्जी, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज पावर हाउस ऑफ सेल एंड इट इज द सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल। सेमी मीन्स हाफ, ऑटोनोमस अपने आप। माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा ऑर्गेनली है, सेल ऑर्गेनली है जो अपने डीएनए को रिप्लिकेट कर सकता है, अपने जैसे और माइटोकॉन्ड्रिया बना सकता है एंड ये कुछ थोड़े बहुत प्रोटीन्स भी सिंथेसाइज कर सकता है अपने अंदर, दैट्स व्हाई इट इज द सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल। ल्यूकोप्लास्ट, these are the colorless plastids, they perform the function of storage, they may store the starch, they may store the protein. Chromoplast, chroma means color, so these are the colored plastids, they are responsible for the color of fruits and flowers. Chloroplast, chloro means green, these are the green plastids responsible for photosynthesis in leaves. Vacuole, vacuole are the storage sacs of cell. Now we will learn some important questions which are important from your exam point of view, so be sincere. First question, who discovered cell in 1665? I have told you earlier, Robert Hooke, Robert Crooke, David Thomson, Mary Francois. So the correct answer is yes, answer number A, Robert Hooke. Human cheek cells are commonly stained with, जो ह्यूमन चीक सेल्स होती हैं उनको हम किससे स्टेन करते हैं, स्टेनिंग करते हैं, मिथाइलिन ब्लू, सैफ्रनिन, एसिटोकार्मिन एंड इयोसिन। आंसर इज आंसर ऑप्शन नंबर ए, मिथाइलिन ब्लू। सो मिथाइलिन ब्लू की हेल्प से हम ह्यूमन चीक सेल्स को होती हैं जो हमारे गाल के अंदर की सेल्स होती हैं, ठीक है, तो उससे हम चीक सेल्स को स्टेन करते हैं। नेक्स्ट, न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन, विर्चो एंड शेल्डन।
Answer is option number B, Robert Brown. So who discovered nucleus? Robert Brown. Cell was focused in microscope under. सेल को माइक्रोस्कोप में कहाँ कितने पावर में फोकस किया जाता है? 40x, 10x, 100x, any of these. Option B is correct, 10x. Name the outermost boundary of the cell. सेल के outermost boundary कौन सी है? Plasma membrane, cytoplasm, nuclear membrane, none of the above. Correct answer is option number A, plasma membrane. Next, name the process in which the ingestion means intake of material by the cells is done through the plasma membrane. कौन सी प्रोसेस है वो? इजेशन, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, एंडोसाइटोसिस. So the correct answer is yes, option number D, एंडोसाइटोसिस. एंडोसाइटोसिस क्या? एंडो मीन्स इनसाइड, अंदर. तो जब सेल्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू चीज़ों को अपनी बॉडी अपने अंदर लेती हैं, दैट इज एंडोसाइटोसिस. द जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट इनसाइड द सेल इज नोन एज cytoplasm, ectoplasm, nucleoplasm, and none of the above. Correct answer is yes, option number A, cytoplasm. The jelly-like substance is cytoplasm, or we can say semi-fluid substance. Blue-green algae are prokaryotes, eukaryotes, both A and B means prokaryotes भी हैं, eukaryotes भी हैं. Then option number D, neither A or nor B. Prokaryote भी नहीं है, eukaryote भी नहीं है. Correct answer is option number yes, A, blue-green algae or cyanobacteria. These are the prokaryotes. These are the prokaryotic cell because their nucleus is without nuclear membrane. The outermost covering of a plant cell is, जनरली हम कहते हैं कि सभी सेल्स की outermost covering क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन. बट एक प्लांट सेल के केस में outermost covering क्या है? Yes, memorize the structure of plant cell. Plasma membrane, cell wall, vacuole membrane or nuclear membrane. Yes, correct answer is option number B, cell wall. Cell wall in plant cells is made of starch, glycogen, chitin and cellulose. Very important. प्लांट सेल्स की जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, सेलुलोज. इन प्लांट सेल्स सेल वॉल इज डायनेमिक एंड लिविंग. डायनेमिक मीन्स फ्लेक्सिबल होती है, डायनेमिक एंड लिविंग, रिजिड एंड नॉन लिविंग, डायनेमिक एंड नॉन लिविंग, रिजिड एंड लिविंग. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, द सेल वॉल इज रिजिड एंड नॉन लिविंग. हार्ड सेल वॉल होती है. Yes, next question is the organelle not present in human cheek cell is. Human cheek cell के अंदर कौन सा सेल organelle present नहीं होता? Nucleus, mitochondria, chloroplast, cell membrane. Yes, think about. So the correct answer is option number C, chloroplast. Why? Chloroplast किसके लिए responsible है? Photosynthesis के लिए. और photosynthesis कौन करता है? Plants. तो chloroplast कहाँ होगा? Plant cell में. Human cell में absent होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस सेल इज द लॉन्गेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी. हमारी बॉडी में सबसे लॉन्ग सेल, लॉन्गेस्ट सेल कौन सी है? मसल सेल, नर्व सेल, बोन सेल, ग्लैंड सेल. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, नर्व सेल. नर्व सेल जो है वो सबसे लंबी सेल है हमारी बॉडी के अंदर बिकॉज इट कैरीज द मैसेज फ्रॉम वन पार्ट टू द ब्रेन. हमारे फुट से लेके हमारे ब्रेन तक भी ये जा रही है. सो दिस इज द लॉन्गेस्ट सेल इन अवर बॉडी. This cell organelle does not contain DNA. इनमें से कौन सा सेल ऑर्गेनेले है जिसमें डीएनए प्रेजेंट नहीं होता? न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स, क्लोरोप्लास्ट. यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, लाइसोसोम. न्यूक्लियस में तो डीएनए प्रेजेंट ही प्रेजेंट है, क्रोमोसोम्स है वहाँ पर डीएनए प्रेजेंट है. माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी डीएनए प्रेजेंट है, अभी बताया था मैंने आपको. इट इज़ द सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेले क्योंकि इट हैज़ इट्स ओन डीएनए. क्लोरोप्लास्ट भी सेमी ऑटोनॉमस है बिकॉज इट हैज इट्स ओन डीएनए. सो माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, दीज आर द टू ऑर्गेनेले विच आर सेमी ऑटोनॉमस. सो द लाइसोसोम इज द वन विच डज नॉट हैव इट्स डीएनए. द ऑर्गेनेले सर्विंग एज ए प्राइमरी पैकेजिंग एरिया for molecules that will be distributed throughout the cell
is vacuole, plastid, mitochondria and Golgi apparatus. Answer is option number D, Golgi apparatus. गोल्गी apparatus क्या है? ये एक ऐसा सेल ऑर्गेनेले है जो पैकेजिंग का काम करता है मॉलिक्यूल्स को, उनको पैक करता है और फिर पूरी सेल के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करता है. सो गोल्गी apparatus इज द पैकेजिंग यूनिट ऑफ द सेल. एनिमल सेल्स आर इंटरकनेक्टेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल, डेस्मोसोम्स, प्लाज्मोडेस्माटा. जितनी भी एनिमल सेल्स हैं वो आपस में इंटरकनेक्टेड होती हैं. किसके थ्रू? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, डेस्मोसोम्स. डेस्मोसोम्स क्या है? दे आर जस्ट लाइक द पोर्स. सो जितनी भी एनिमल सेल्स हैं बॉडी के अंदर दे आर कनेक्टेड बाय डेस्मोसोम्स. नेक्स्ट इज वेयर इन ए यूकैरियोटिक सेल DNA कैन बी फाउंड? न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल, बोथ A and B, मीन्स बोथ न्यूक्लियस एंड माइटोकॉन्ड्रिया. अभी बताया था मैंने आपको DNA न्यूक्लियस में भी प्रेजेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी प्रेजेंट है. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में DNA प्रेजेंट है. द मेम्ब्रेन अराउंड द वैक्यूल इज नोन एज. वैक्यूल के अराउंड जो मेम्ब्रेन होती है दैट इज टोनोप्लास्ट, एलियोप्लास्ट, साइटोप्लास्ट, अमाइलोप्लास्ट. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, टोनोप्लास्ट. जीन्स आर लोकेटेड ऑन, वेरी इंपॉर्टेंट, जीन्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? क्रोमोसोम्स पे, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, राइबोसोम. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, क्रोमोसोम्स. जीन्स आर द bead like structure or dot like structure which are present on the chromosomes. Which organelle of the plant cell has chlorophyll pigment in it? इनमें से किस ऑर्गेनेले के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है? माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस, वैक्यूल. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, chloroplast. So chloroplast is the cell organelle which contain the chlorophyll pigment. What will happen when human red blood cells are placed in hypotonic salt or sugar solution? अगर ह्यूमन आरबीसी को, रेड ब्लड सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखा जाता है तो क्या होगा? दे विल स्वेल अप और बर्स्ट, दे विल श्रिंक, नो चेंज, बोथ ए एंड बी. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दे विल स्वेल अप और बर्स्ट. अब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन मैंने आपको बताया था जिसके अंदर वाटर कंटेंट ज़्यादा है और सॉल्यूट कंटेंट कम है. अब सेल के अंदर वाटर कम है और बाहर जो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन उसमें ज़्यादा है, तो सेल क्या करेगी? उसको एब्जॉर्ब करेगी. एब्जॉर्ब करने से क्या होगा? पानी एब्जॉर्ब करने से वो स्वॉलन हो जाएगी, फूल जाएगी. और अगर बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगी तो वो बर्स्ट भी हो सकती है, फट भी सकती है. नेक्स्ट क्वेश्चन. सेल थ्योरी वाज गिवन बाय, आई हैव टोल्ड यू, शेल्डन एंड सचुआन, विर्चोव, हुक, हैकर. सो करेक्ट आंसर इज शेल्डन एंड सचुआन. ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर. Which out of the following is not a function of vacuole? 4 फंक्शन है, इसमें से कौन सा फंक्शन वैक्यूल परफॉर्म नहीं करती है? स्टोरेज, प्रोवाइडिंग रिजिडिटी एंड टर्जिडिटी ऑफ द सेल, वेस्ट, एक्सक्रीशन, देन लोकोमोशन. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, लोकोमोशन. यानी कि मूवमेंट में कोई हेल्प नहीं करती है वैक्यूल. ये स्टोर भी करती है, सेल को रिजिडिटी भी प्रोवाइड करती है और जो सेल के अंदर वेस्ट मटेरियल है उसको एक्सक्रीट भी करती है, बाहर एक्सपेल आउट भी करती है. नेक्स्ट वन. द अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन ऑफ प्रोकैरियोट्स आर ऑल्सो नोन एज. मैंने आपको बताया था कि प्रोकैरियोट्स के अंदर जो न्यूक्लियर मटेरियल है वो वेल डेवलप्ड नहीं है, बिकॉज न्यूक्लियस इज नॉट वेल डेवलप्ड, बिकॉज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट. तो जो खाली न्यूक्लियर रीजन बचा है उसके अंदर उसको क्या कहते हैं? उसका कुछ और नाम भी है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लिक एसिड और न्यूक्लियोइड. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, न्यूक्लियोइड. सो न्यूक्लियोइड इज द सेकेंड नेम फॉर द न्यूक्लियर मटेरियल ऑफ द प्रोकैरियोट्स. So students, this was all about some important terms and questions of this chapter. I hope you liked the video. Thank you students. If you have any doubt, then you can ask in the comment section below. If you like this video, then please like and share it and subscribe to the channel for more such videos.